So this class I have planned in accordance with the lot many क्या बोलते हैं मतलब criticizers of HR or the people who criticize HR that HR also is being uh, मतलब it's not very critical to the company or neither it is important for the future or not many people say the person who is moving to HR is basically stopping his chance to grow up to the senior level or CEO level or director level. So there is a limitation for the growth of HR because it uh, eventually it got get saturated after some time. But ऐसा नहीं है मतलब that I would like to convey through this lecture. Or we'll be talking about the external changes that is happening worldwide and how it will have the impact on HR practices and we will also uh, external changes. So the first point that I might not have written anywhere in my slide is like कि जब हम मार्केटिंग का फील्ड ऑप्शन वो करते हैं चूज करते हैं या फिर ऑपरेशन चूज करते हैं या फिर हम फाइनेंस चूज करते हैं. So in that way we say कि someday we might go to the CEO level or other मतलब not CEO is the ultimate aim है ना, the CEO position is not the aim, but the thing is like the person who is leading the organization, who is the person who is uh, putting growth or putting fueling the organization for the growth, या फिर the person who can basically take over the entire processes in order to lead. तो ऐसा बाकी सब के लिए हम बोलते हैं बट कई बार एचआर के लिए हम ऐसे वर्ड्स का ऐसे ओपिनियन का यूज नहीं करते. और इवन जब तुम ज्यादातर लोगों से पूछोगे कि व्हाई डू दे वांट टू डू एचआर, तो अपने आप को पीपल रोल में ही कई बार अपने आप को डिफाइन करते हैं कि आई एम गुड विद द पीपल, आई कैन मैनेज, आई कैन मोटिवेट, आई कैन ब्रिंग change to the organization in a way so that everybody will participate in the organizational goal. तो हम बहुत पीपल सेंट्रिक की बात करते हैं, वी नेवर टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ सेंट्रिक. तो आप इस चीज से थोड़ा ऊपर उठ के बात करोगे तो ज्यादा बेटर होगा. So when you are entering into HR or OD role, it's not just the profile that you will be dealing, you will be also contributing in the organizational growth in many ways. So it is the same like when marketing people or operation people, they can think about themselves, they can spread their leg to any place in the organization. Similarly, you can also, and you being that is more likely than the other discipline people because you will be trained for the all the uh, functionalities of the organization. At the same time, up since in while working for the organization, you will be dealing with all the people. So you must be knowing or you will be knowing the entire organizational effort at the every corner and whosoever doing it, and you'll be knowing their pain, their plight, their effort, their training needs, their profile requirements. So since you know everything, so you being shifted to the senior position or not don't be the greedy in while talking. कि I'll be taking the senior position. I'll be going to the senior. You being the propeller to the organization is more feasible than other people is coming. Of course, while saying this, I'm not demeaning them, but I'm saying because lot many people who are opting for other specialization, they feel themselves they are going to be the senior most leader of the organization and they will be going to be the leader of the organization who is putting growth in the organization. But HR people or HR students, while selecting the HR field, they keep themselves very limited to the HR roles or people centric role only. But ऐसा नहीं है, आप strategic role भी आगे चल के assume कर सकते हो. And since I'm not, the lecture is not about this. The lecture is about in future why the HR was going to be more typical or more critical and even more challenging. है ना, उसका हम थोड़ा बहुत मतलब we'll be discussing in that concern. So I've taken a figure from हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू. हो सकता है तुम लोग कभी पढ़ रहे होगे तो ये पिक्चर आया होगा तुम्हारे पास भी. सो इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड और वेल प्रिडिक्टेड आप समझो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू माइट हैव यू माइट गेट इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर. और इसमें भी इन्होंने टाइप ऑफ कंपनीज को भी डिफाइन कर दिया है, जैसे रेड बिंग वेरी हाई टेक कंपनीज है ना, ऑरेंज बिंग orange being mild to low.
मतलब this type of company. And here also the पर्पल कलर है ना, ये जो भी कलर है लो टू माइल्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर, तो नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर्स के क्रम पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो आई एम लीविंग दिस ग्राफ टू यू कि आप इसको स्टडी करना, because the thing that I'll be discussing here, that will be reflected here also. So once the lecture is done, you'll go back to the slide and visualize and try to gaze the graph to understand more about it. So now the point is like till now we are more of thinking about our thought process is about employee management. So we as an HR role, what we see कि हमारा ये एम्प्लॉय है, इस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है ना, उनका कंपनसेशन, उनका यूटिलिटी, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उस पे हम बात करते हैं। बट सिंस द द ऑर्गेनाइजेशन हैज मूव्ड टुवर्ड्स प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने कभी हमारे पुराने लेक्चर को भी सुना होगा, तो यू मस्ट हैव हर्ड अ टर्म कॉल्ड पॉटर वैल्यू चेन, है ना, पॉटर वैल्यू चेन। और so Potter claimed कि it's not people, it's not your department, it's your processes which basically earns money for you. So this is the activities, primary activities that is being done, and there are five major primary activities which he has defined. One is procurement, ठीक है? Procurement मतलब कि how do we get our resources from the suppliers? Then we say inbound logistics. So after procurement, how do we make available all these products? कैसे warehouse में रखते हैं, कहाँ हम रखते हैं? Then we do operations on it. Operations, I mean manufacturing other things. Then we have outbound logistics. This is very famous वो chart, है ना? ये तो although मुझे मतलब since you are going for the HR role or operation OD role, आपको ये जानना जरूरी है। और नहीं भी जानोगे तो you'll find कि every good book of management, irrespective of the nature of the book, है ना, ये चेन और ये वाटर वैल्यू चेन ना जरूर बताया जाता है, बिकॉज इट इज वेरी the recent practice that world has started, not very recent, है ना, the theory or the concept had been devised in the year 85 only, 1985 only, but the entire world is yet to uh, adopt this way of thinking. So outbound logistic is more about how the manufactured product is going to warehouse and other retailers or where wholesalers, and then finally sales and support to the customers. ठीक है? So these are the primary activities which basically earns money for you. And every time if you do something good in this part, and that will reflect in your price, and that will reflect in your sale, and that will reflect in your profit. So this is how it happens. So all the other departments like HR, like finance, like marketing, all these operations, all these people, all these departments, IT is there to support this activity. So by saying this, I'm not demeaning or I'm not criticizing or I'm not making less value for the departments who are working for this particular activity. What I'm telling is even their focus is more about these activities, not about their functionality. So हो सकता है कि they have to think cross functional or cross processes also. So मतलब they have to think cross processes or cross functional at the same time. तो उसमें क्या होता है कि now a person from any particular department or any particular function will not think in term of कि I am belong to this function, but he will think I belong to this part of the process. ठीक है? तो जब HR की बात आती है, so the HR people earlier they used to know, or we what we have understood always, that HR people manage the employees, their work-life balance, their training and skill mix, everything, and we map according to that. We map employees, but now it's more about mapping skills. It's about mapping, managing skills, like where skill is being changed, where skill is being uh, obsoleted, where the new type of skill is required. So now HR will have to manage employee as well as the skills which is being used everywhere. So now employee and skills will be mapped in different way. Employees will be mapped in different way, and skill will also be mapped
and skills progression will also be mapped, the prediction will also be done there, so that HR people can understand what new skills must be needed, might be needed for the organization, and they will manage the skills of the organization irrespective that skill is in employee only, है ना? So now they think कि whether we have resources for this skill or not, rather than we have this employee with that skill, है ना? तो एक थोड़ा सा रिवर्स थिंकिंग है, तुम थोड़ा सा इसको फील कर पाओगे कि वाइल वी मैनेज एम्प्लॉय एंड वाइल वी मैनेज स्किल, तो हम एम्प्लॉय मैनेज करते थे तो एम्प्लॉय की स्किल्स की बात करते हैं, जब हम स्किल्स मैनेज करते हैं तो स्किल कौन सी एम्प्लॉय के पास है इसकी बात करते हैं. So since with this activities we don't want to miss any skill which is very much crucial for this activities or primary activities or any of the point here which is happening, है ना? इसको और डिटेल करोगे तो it's not just 5 activities, there will be numerous of processes and activities and tasks being done. So all those places there will be skills required and there will be change in skills, there will be induction of new skills or diminishing of earlier skills. So all this thing will happen. So HR role is will be now to manage skill rather than employees only. Are you getting my point? ये बात समझ में आई तुम लोगों को? So am I audible to all of you? कोई बोल हाँ नहीं रहा है? सर, हाँ सर। ठीक है? Yes, sir. So this is future role. मतलब अभी आप इसको बहुत अच्छे से नहीं कर, but after 5 year, 10 year down the line, people will start even कई सारी IT companies are thinking in this way only, है ना? तो ये एक तरीका है. उसके बाद नेक्स्ट आता है informatics and HR analytics, that matlab, it is already here and a lot many companies have started using it, but lot many have not, है ना? Not many companies have still or yet to realize the potential of information system and analytics in the HR. So we were also doing the extempore today, and some Sika was explaining about the use of analytics in HR. So you can find numerous way to find it useful for your company. So you can predict the skill requirement, you can predict the attrition rate, you can predict what kind of salary average will be required for the particular type of profile. So there are n number of things that you want to know, and you have data to predict or analyze about that value. So again, and to create any strategy, you might need data. So information system and analytics used to help you and going to help a lot. So HR of now, since the role of HR, so the HR will have to train, or the person who is going to HR will have to train in these two perspectives, how to use data and how to use analytics. तो थोड़ा जो brief है हम तुम्हें पहले भी बताया मैं, because they can ask what exactly is information and informatics and information system and analytics. So what you know is कि there are databases, ना centralized database होता है. Database के बाद data पहले usually what it used to happen कि users होते थे, database से direct data use करते थे. Now there is an application layer which basically converts the information and data into, fact and data into information, and then it goes to user. So इसी को हम R3 architecture बोलते हैं. और since इसी application layer में you can build more and more uh, application layer में you can build more and more logic and reasoning, so that it can act as an analytics. ठीक है? तो इसको आप उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो. So now the thing is, like earlier you had to manage employee, मतलब हम लोग employee को employee की तरह देखते हैं, but since now you have seen that we also need to create a workplace, और जब हम workplace creation की बात करते हैं तो employee अकेला नहीं होता. Employee is working on what machine, we have to think them together. So if there is an employee, he is working with computer, so we need to think employee and the computer or employee of the system with as one unit. So in future, when lot many machines are being introduced and company is going or adopting technology more and more, so every person or every employee is associated with some kind of machines, because his work is not going to be done by himself only. He is going to take the help of machine. So अब आपको when there is an employee, when you're thinking about an employee, you also need to think about the peripherals associated with the employee,
with respect to machines. So now it's not just employee that you are managing, you are also managing the employee with its peripheral. तो पहले क्या होता था, हम क्यूबिकल बना दिए, क्यूबिकल में एक लैपटॉप डाल दिए, बस वो हो गया। बट नाउ आपका उनके ऐप भी है, उनके मोबाइल्स पे भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट ही माइट कैरी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो पर्सन जिस मशीन पे जाता है, काम करता है, सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे सो दैट there will be a congenial relationship, or there will be a uh, सूदिंग, मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो मैन विद द मशीन, है ना, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो नाउ यू हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। उसके बाद होता है सिंस इन ऑल यू नो, मतलब यू ऑल नो दैट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक, things is changing very fast, and the corona suggested you that things can change just like this, मतलब in a flip, है ना। So you have must have seen a lot many unicorn and lot many multi-billions company has started losing all its assets and all its employees in the corona time. So there are few things that you cannot uh, save, or you cannot just do anything about it. But lot many company, by doing some smart job or doing some smart HR practices or strategic practices, they have been able to save their employee, their business, and everything. So 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 they were, either they were prepared for the contingency, or they were at the very new stage, so that they could adopt very easily because they are still to get stable in a one particular direction. तो अभी क्या है कि जितने भी स्टेबल सिस्टम है उनके साथ बहुत नुकसान हुआ, बिकॉज दे कुड नॉट चेंज very rapidly with the change of requirement. So जैसे I'll take you my example, since we were in a early growing phase only when corona came, so it was very easy for us to shift in a online mode, or doing everything online, because lot many things that we were doing at that time that was still on the stage of evolution. So for us, tweaking at that stage was quite easy. But I'm seeing lot many coaching institute, lot many systems which were very much stable with the offline system. They were not able to, they could not term themselves into the online coaching classes. So basically, वो तो फिर भी आसान था, तुम सोच सकते हो, मतलब इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑनलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा, बट स्टिल देयर इज लॉट मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी डन इन दैट ऑल्सो। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग से लेके कई सारी चीजें होती हैं, उनके वर्क वर्क टाइमिंग के मैनेजमेंट और एवरीथिंग। बट for a big organization, for a bigger organization where 2,000, 3,000 people are working, so all of a sudden shifting everyone to the work from home, or managing their time and life at the home, है ना, so that we are thinking they are working from home तो ज़्यादा relax feel कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लॉट में, बिकॉज टीम इज नॉट देयर विद देम, है ना, जो जेनरिक हेल्प, जो ग्रेवियंसेस विद जो कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, वो नहीं हो पाता है। तो लॉट मेनी थिंग्स देयर देयर मिस। तो उस केस में कंटिजेंसी के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड हाउ डू प्रिपेयर योरसेल्फ, दैट आई डोंट नो, एंड दैट इवन कॉलेज डोंट नो। बट व्हेन यू से कि लॉन्ग टर्म में आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द कंटिजेंसीज, like the corona happened, like a number of other things happened. This all of a sudden your company might get acquired some other company which is bigger than you in terms of number of employees. Now their human HR practices will be interfering yours, and you want to, your HR practices should be there. So वो change, वो conject, जो वो merger के पास जो diversity को manage करना होता है, cultural shift करना होता है, that is very important. And that is all of sudden you need to do, all of sudden contingency approach से उसको करना पड़ेगा। तो इवन जैसे ओडी वालों के लिए तो चलो ठीक है, दे कैन से कि इट्स माय, मतलब कोर्स वर्क में ऐसा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरेटिकली कोई मॉडल बताया जाएगा। Even in OD, they will induce some kind of theory or real life events or hypothetical situation where you have to manage the change. But ऐसा नहीं है कि the change that you are going to face will be same as you have read in the book. So nobody can prepare you for contingency, but contingency approach you can have in your process. So there is a process for that. There is a thing, मतलब there is a way to do this, है ना। और contingency management approach जो है, ऑल्दो मैं तुम्हें एक नाम बता देता हूँ, तुम थोड़ा कभी पढ़ना इसके बारे में, सी के प्रहलाद, मैंने कभी तो एक बार और कभी नाम लिया होगा इनका। तो ही वॉज द मैनेजमेंट गुरु, एंड करीब 8-10 साल पहले इनकी डेथ हो गई।
So he was the person who was very much uh, focused about the contingency management approaches. ठीक है, तो इसके ये भी अगर आप बोलते हो अपने इंटरव्यू में, है ना, सो if they say कि what are the HR perspective or HR roles that you see in future, so you can say it's not just corona, lot many things are happening. Globalization is in very much for the happening in very much fast paced, technology in increasing, information technology increasing, machines and artificial intelligence is increasing. So the company functionality can change in a very fast way. At the same time HR practices will be, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. ठीक है. And again, and when we are talking about contingency, मतलब this doesn't cover the previous point, but still यहाँ पे आपको अब since you are moving different to different countries, you are moving different states, and now people are accepting the diversity in society. So again, you will also have to accept the same in the company. So and people are also coming with their true identity. So once they were pretending that they are the same which you are, then it was okay. आप उनको खुद जैसा behave करके, जैसे I'm talking about in the LGBT community sense. So अब जब they are like identifying themselves in their original self, or now government has also said that मतलब उस पे भी reservation या फिर there is a policy for inclusion. So lot many way in lot many way we are getting diverse workplace now these days, which were not available before, which were not मतलब नॉर्मल बिफोर. सो उस न्यू नॉर्मल को, इस न्यू नॉर्मल को विद द डाइवर्सिटी आपको मैनेज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज डाइवर्सिटी कैन मतलब इफ यू आर नॉट मैनेजिंग डाइवर्सिटी वेल, इट कैन हैम्पर योर ऑर्गेनाइजेशन इन बिग वे, है ना. बिकॉज द इंटायर टाइम द पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग each अदर, और नॉट ओनली फाइटिंग, मतलब कई तरह के ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकते हैं just because of diversity, if you are not managing or you are not using diversity for a in a good way or positive way. So more and more diversity will be there, and managing the diversity is again very challenging. अब तुम पूछोगे क्या challenge होता है, so these things you have to read from the magazines or articles, but in coming days there will be more matter of diversity, है ना. So दिस इज व्हाट वी मतलब वी वर टॉकिंग, और हमने हाइपोथेटिकली उस पर बात किया था कि एचआर को कंपनी के गोल के साथ, और दे शुड कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेटजी. वहाँ सूरज भी पता है कि भाई एचआर वाले स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, स्ट्रेटजी तो सीईओ और उसका टीम बनाता है. बट आई वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, बट नाउ सिंस अंडरस्टैंड, सो व्हाट हैपेंड नाउ, सिचुएशन समझो कि एचआर जो है एक तो गोल से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग एम्प्लॉय एंड वी आर नॉट नोइंग कि एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, तो हम उसको सही मैनेज करके भी गोल के साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे. तो कनेक्ट विद द गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पहले ऐसा नहीं था, मतलब हमारे लिए ट्रेनिंग और ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉय वेलफेयर, उनके वेलबींग का, उनका लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का. बट गोल को, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को माइंड में रख के उसको अलाइन करने का काम जो है, वी स्टिल लैक इन दैट. ऑल्दो बुकेस और एट द टाइम व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन, इट सीम्स वेरी ऑब्वियस कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए, बट व्हाइल प्रैक्टिसिंग इट इज नॉट दैट ऑब्वियस. तो एक तो गोल के साथ कनेक्ट, दूसरा क्या, सिंस यू आर knowing the all kind of functionalities of companies, and since for the change purpose or for the contingency purpose you are also observing the external changes which is away from organization, in that case you might have better insight for the future plan, or you can also come up with the good strategy or a good way to innovate in the company's strategy making. So now the HR role has also got, or HR has also got this kind of roles in their organization. So तुम अभी तो तुम्हें लगता होगा कि सर ये तो हम बात करते ही हैं, अक्सर बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है. इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, है ना. ज्यादातर टाइम एचआर पीपल आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड टू द प्री, मतलब एक्सटर्नल से अलग की बात होती है, वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उसके इंडक्शन, एम्प्लॉय इंडक्शन, उनके वेलफेयर, उनके वेलबींग, और बात की ट्रेनिंग, मतलब एडिट ट्रेनिंग के, इसी पे ज्यादातर फोकस रहता है. बट मतलब लेटर वी नीड टू नो, और वी हैव टू बी इन
इन कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और स्ट्रेटजी मेकिंग में भी हमें पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है एज एन एचआर, और वी शुड पार्टिसिपेट। तो जब आपसे बेसिकली हम ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट टू टेल यू दैट it's not a profile which is going to be stagnant after 10 year or 15 year down the line. So you can see multiple opportunity to go ahead with it. So now after these points, अच्छा ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एम्प्लॉयज विथ मशीन। नाउ यू कैन ऑल्सो कंसिडर मशीन एज एम्प्लॉय, क्योंकि अब तुमको पता है कि आने वाले टाइम में रोबोट्स आर गोइंग टू वर्क इन फैक्ट्रीज। सो इफ एचआर मैन सिर्फ इंजीनियर अगर रोबोट को मैनेज कर रहा है, तो इंजीनियर विल इज नॉट वेरी मच अवेयर विद द अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर है विच इज वर्किंग फॉर द रोबोटिक और वर्किंग वर्किंग फॉर द रोबोट। बट रोबोट से काम कराना है, या रोबोट को स्किल देना है, दिलवाना है, या रोबोट को किस फंक्शनैलिटी के लिए यूज करना है, तो मशीन्स को भी आपको मैनेज करना पड़ सकता है आगे चल के। और ये दिस कैन बी देयर इन नेक्स्ट 15 ईयर्स ऑल्सो, और नेक्स्ट 5 ईयर ऑल्सो। और मुझे लगता है टेस्ला जैसी कंपनी में तो इट्स वेरी मच present there. So as an HR manager, as a resource manager, you have to understand the machine's role, robots role, which are working as the replacement of the employee or added employee resource. तो उसको भी एम्प्लॉय की तरह आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको भी आपको उसकी स्किल्स की मैपिंग करनी पड़ेगी, उसका फंक्शनलिटी की मैपिंग करेंगे। ऑफकोर्स वर्क लाइफ बैलेंस होता नहीं है, बट स्टिल उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा एज एन एचआर मैनेजर, ठीक है, बिकॉज they can be used as, or they are being used as the employee. So now, after saying all these things, which are basically meant to discuss the role of HR in modern companies, technology-based companies, or IT-based companies, or consulting-based companies, now let's go back to the India or developing companies where we still have a number of companies who is very much labor-intensive, and the type of worker, type of labor which are working there are not very much skilled. So they are still labor, or the personnel who are working for the employee. So I have already told you. So there is a growth, or there is a different terminology that we use with respect to skill. And someone who is working as like daily basis or type of daily basis kind of profile, their skills are not very important. They can be used and very marginal, once marginally, छोटे स्किल्स की जरूरत होती है विच कैन बी ट्रेन, और इनकी रिप्लेसमेंट से कोई आपको लेना देना नहीं है। मतलब यू कैन रिप्लेस एनी टाइम यू वांट। तो लेबर्स जो है, इसको लेबर हमने बोला, फिर थोड़े स्किल्स हो गए, इनमें स्किल्स आने लगी, आपकी कंपनी की फंक्शनलिटी थोड़ी चेंज हो गई, तो थोड़े स्किल बेस्ड लेबर की जरूरत पड़ी, तो उसको पर्सनल हमने बोला, है ना, LLEL वाली। फिर हमने बोला इसको कि ह्यूमन रिसोर्स हमने बोला, और बाद में हम इसको ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं, दैट वी वर टॉकिंग बिफोर। तो हम आई विल गो बैक टू द लेबर लेसन। तो नाउ यू सेइंग, यू कैन से कि सर आपने पहले बताया था कि हम लेबर लेसन एंड सोशल वेलफेयर पढ़ते थे पहले, है ना, एमए वाले। तो हमारे पास वो थ्योरी, वो प्रैक्टिसेस, वो केस स्टडी तो है ही, है ना, वो प्रैक्टिसेस तो है ही टू मैनेज आवर करंट नीड और करंट जो लेबर फोर्सेस है। और यू कैन ऑल्सो से कि सर PMIR कोर्स भी तो हमने डेवलप किया था, और मतलब गुड अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव रिसर्च ओवर इट, एंड वी हैव developed many practices for managing our personnel. So, what is the need of thinking about labor licensing these days? So the need is because uh, भले ही हमारे स्किल्स या लेबर के टाइप में चेंज नहीं हुआ, बट कंपनी फंक्शनलिटी एंड ओवरऑल अदर सोसाइटल नीड बहुत चेंज हो गया है ना। तो उस केस में विल हैव टू गो बैक टू दीज रूट्स। तो अब सोचो, सिंस यू आर हियर and who is going to study HR, and you have to go back, and you have to go back to that era where you were studying labor relations and social ये वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जैसे वाली टर्म हम पढ़ते थे, IR। तो हम उस जगह पे जाना चाहते हैं, उस चीजों को समझना चाहते हैं, बट वी कैन नॉट डू इट इन द सेम वे which were supposed to be done in 1980s 1970s, because at that time when theory was developed, the social and technological and all socio-economical space was very different, the nature of society was different। तो अब जो है, और इवन द लेबर एक्सपेक्टेशंस were not that much at that time।
तो अभी क्या है कि भले ही लेबर्स के पास आपको स्किल कम बट उनके पास एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट तरह की है ना, उनकी फैमिली नीड और उनके सोसाइटल नीड और कम्युनिटी नीड आर डिफरेंट। तो अब जो हमें वापस जाना पड़ेगा दूसरा, यू यू माइट आल्सो हैव अ सोशल ऑब्जेक्टिव इन इट कि बिकॉज दीज लेबर्स आर स्टिल बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन अ वेरी बिग वे। तो एक एक एम्प्लॉयर जो है, जो आपको भी एम्प्लॉय देता है, आपको भी एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वहां पे उस बीच के पोजीशन में रह के हाउ यू कैन वर्क फॉर their rights also, at the same time in the advantage of employee also, because you know if laborers are happy they will be more productive, even the employee will get more return। तो एम्प्लॉय भले ही इस बात को नहीं समझता है, लेकिन एज एन एचआर मैनेजर तो आप इस बात को समझोगे। सो यू कैन थिंक कि वी कैन गो बैक टू द प्रीवियस थिंग दैट हैज हैपेंड और हमने डेवलप किया या हमने कभी एक्सप्लोर किया है। सो वी कैन गो बैक टू द रूट्स एंड वी कैन with all new perspective we can use technology and other things, other new world management techniques to manage that relationship। तो यहाँ पे आपको लेबर रिलेशंस वाले कोर्स में और लेबर रिलेशंस पार्ट में हम आप इस तरह से बात कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रोल्स। एंड अगेन इन द सेम वे आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रिजिंग द गैप। तो वाई गैप? बिकॉज द मॉडर्न डे एम्प्लॉय है ना, जो किसी उसमें टेक्नोलॉजी कंपनी का या फिर स्किल्ड एम्प्लॉय की बात करते हैं, so we do have PPF and a number of things, social security, and since they can easily change their job, they can find growth, they can find training opportunities and growth opportunities, and we also want our employee to get trained for different technologies so that they can be used in coming demands। But for labor, it is not the same। हम चाहते हैं कि वही काम करता रहे, वही चीजें करता रहे। तो अब ये और ये जो इनके एक्सप्रेशन है, इनकी लाइफस्टाइल है, इनकी अर्निंग है, और ये इसमें बहुत डिफरेंस है। तो यू एज एन एचआर मैनेजर, यू एज मतलब now you can consider as a people, as a person who is working for not only the company also the nation। so you want to bridge this gap, है ना? ठीक है, आप इसको ये नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक अ लेबर अनएम्प्लॉय, बट इनके लाइफस्टाइल में, इनके स्टैंडर्ड्स में, इनके थॉट प्रोसेस, इनके एक्सप्रेशंस में भी एक सब्सटेंशियल चेंज ला सकते हो, सो दैट वो ब्रिज गैप हो सके। एंड यू नो इन लॉन्ग टर्म if this gap will be there, so there can be a number of other disasters can happen, मतलब people can get more dissatisfied, और बाद में अगर जाके वो इंडस्ट्री obsolete हो जाती है, तो all these people will be unemployed, and I'll not say liability on other people, but again the thing is, if they are not being productive and they are still the consumer कंजम्पशन एंड पे वो रहते हैं, दे आर नॉट ऑन द प्रोडक्शन एंड, तो वो फिर देश के लिए लाइबिलिटी ही हो जाती है। तो उसे डिमीन करने वाले सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, बट सिंस आई हैव रेड इन द व्हाट इकोनॉमी नीड्स नाउ आल्सो, सो द मतलब उसमें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि जब हम 35 टू 55 के एज ग्रुप को हम विजुलाइज करते हैं, है ना, तो वी थिंक अबाउट कि द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप इन टर्म ऑफ मतलब 35 तक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गेट्स ट्रेन फॉर वॉट एवर ही इज डूइंग। तो टिल 55 अगर वो उस समय बीमार रहेंगे, तो दे विल नॉट बी इन द प्रोडक्टिव प्रोडक्शन वाले जोन में ना रह के वो कंजम्पशन वाले जोन में चले जाएंगे, विच वी कीप इट फॉर द चाइल्ड और द ओल्ड एज हु हैज बीन रिटायर्ड। तो अगर हम ऐसे लेबर्स जो हैं, अगर हम उनको प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे तो हमारी नेशनल इकोनॉमी ही खराब होगी। ठीक है, तो वो गैप को हमें ब्रिज करना है एज एन एचआर मैनेजर और एज एन पर्सन हु हैव स्टडीड HR also or labor relation also can think of bridging this gap. So this you can talk about in your interview. So this is all about all that I have included in this lecture, and mainly to give you some more ब्राउनी पॉइंट भी नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक कैरियर एस्पिरेशन में हम तुम्हें ऐड कर सके और एक एड ऑन दे सके, सो दैट यू व्हेन यू टॉक अबाउट what do you want from this course or what you are thinking ahead, and what future do you think for HR, इस तरह के क्वेश्चंस में यू कैन हैव गुड पॉइंट्स टू स्पीक, और कई बार एक्सटेम्पोर में भी ये बहुत हेल्प करेगा। तो एज ऑलवेज आई विल बी शेयरिंग दिस PDF टू यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है, इन द ग्रुप। इसको तुम लोग, बाकी लेक्चर भी अपलोड हो ही जाएगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, तो इट्स अबाउट तुमने सब काम किया, फाइनेंस पढ़ा है, फाइनेंस में काम किया है, बट नाउ यू वांट टू शिफ्ट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन।
and you have picked HR, है ना? So Yes, you sir. don't have to connect or so it is a very much natural progression. Everybody who does that go for HR only. ऐसा नहीं है ना? Yes, sir. So that's what you think for your life, है ना? For next वो है. And again, somebody can ask कि भाई जिसमें तुम्हारा background बना हुआ है, financial बना हुआ है, उसमें ही क्यों नहीं? तो why should I follow the pattern? Why should I go with the same background और उसी course में जाए? Since क्योंकि HR के लिए भी कोई prerequisite तो है नहीं, है ना? If there would have been any prerequisite for HR, तो वो HR कोर्स भी लिखते कि एलिजिबिलिटी में BA, BBA ऐसा कुछ होना चाहिए था, नहीं लिखते ना? Yes, sir. So that means कि from the very मतलब novice stage we can develop the HR skills in us और we can develop our HR functionality के जो भी capabilities हम develop कर सकते हैं. So being in organization, working in organization or studying finance will always help me in that, है ना? But again, like I told you, don't have to portray it as a natural progression of your career. Okay, sir. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? सर एक डाउट था, जैसे अभी गवर्नमेंट ने वो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम लाई थी, उसमें वो लोग काफी एमएसएमई सेक्टर को पुश कर रहे थे या इजीली लोन अवेलेबल कर रहे थे, तो उस पर्सपेक्टिव में ओडी का लाइक क्या रोल हो सकता है कि कंसल्टिंग मेक इन इंडिया भी जैसे प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन ओडी का रोल जो है ना, इट वेरी मच लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, ग्रोथ, इवोल्यूशन, है ना? उसके प्रोडक्टिविटी, सब चीज के ऊपर, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशंस है ये, तो किस किस सेंस में हम बात कर रहे हैं? इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, है ना? उनके प्रोडक्टिविटी, अलाइनमेंट्स, ये सब चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है. तो अब जब एमएसएमई से आत्मनिर्भर भारत या ये अपने आप में ही ये सजेस्ट करता है कि आने वाला एज अगर हम एमएसएमईज को नहीं प्रमोट करेंगे, स्मॉल स्मॉल कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तो आवर कंपनी विल नेवर ग्रो. क्योंकि एक बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी अगर छोटे छोटे सर्विसेज में भी अपना हाथ डाल देती है, तो वो क्या होता है? मोनोपोली डेवलप हो जाता है. फॉर फ्यू ईयर इट विल बी वेरी रोजी सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो स्केल कर पाते हैं, बेच पाते हैं सही से. बट इन लॉन्ग टर्म द इंटायर इकोनॉमी कैन गेट कोलैप्स. तो गवर्नमेंट और सबका ये होता है कि भाई जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करना चाहिए, उसको ब्रेक करना चाहिए. तो अब अगर दूसरी बात क्या है कि सिंस हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में कि ये छोटे छोटी चीजें जो है, छोटी छोटी मार्केट है, छोटे छोटे प्रोडक्ट है, छोटे छोटे सर्विसेज है, उस पर बड़ी कंपनी ध्यान ही नहीं देती, बिकॉज दे आर फॉर द बिगर प्रॉफिट बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को मोबिलाइज करना है, लिक्विड लिक्विड बनाना है, फाइनेंशियली मूवमेंट को हमें फास्ट करना है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सर्विसेज को भी लाना पड़ेगा विच इज नॉट बीइंग डेल्ट बाय द सीनियर बिगर कंपनी. तो एमएसएमईज का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज दे कैन नॉट थिंक दैट बिग जो रिलायंस सोच रहा है, बट दे कैन ऑलवेज थिंक टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ वेरी नीच लेवल, जिसकी बेसलाइन हो सकता है 10 करोड़ भी ना हो या 20 करोड़ भी ना हो वहां तक पहुंचने का. तो पॉइंट इज कि जब ऐसे जगह पे ये स्टार्ट तो कर देते हैं, कई बार एक स्टार्ट हो गई कंपनी, 30-25 लोग हो गए, 35 लोग हो गए, 40 लोग हो गए, एंड दे हैव सिंस स्टार्ट तो उनको पुश मिल गया, बिकॉज लोन मिल गया उनको, मार्केट मिल गया, एसईजेड मिल गया, सब चीज हो गया, एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग. नाउ जस्ट बिकॉज they could not take care about their OD practices और organizational efficiency और organizational based practices पे ध्यान नहीं दे पाए. ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी जो कमियां हैं, उसके जो वो आपको रिफ्लेक्ट होने लगता है, एंड ग्रेजुअली योर ऑर्गेनाइजेशन माइट गेट ऑब्सोलीट और माइट गेट क्या बोलते हैं उसको, बैंकरप्ट हो सकता है. सो हियर यू हैव द रोल ऑफ ओडी. अब होता क्या है कि कई बार ओडी इज नॉट समथिंग दैट नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू. जैसे मैनेजमेंट के साथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. कोई सड़क का भी आदमी आके बोल सकता है कि हम मैनेजर हैं, है ना? तो सिमिलरली समहाउ कभी कभी कर भी सकता है ना? तो ओडी में भी ऐसा है कि कई बार एक एम्प्लॉय, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, ही हैज सम नेचुरल बेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल, ऑर्गेनाइजिंग मैन पावर इन अ वे सो दैट दिस कैन बी इफेक्टिव. लेकिन अगेन वो नेचुरल बेंट भी प्रोफेशनल बेंट नहीं है, तो उसमें भी कमी है, और जो नहीं कर सकता उसमें तो बहुत कमी है. तो अगर ओडी पीपल
start OD people, मतलब जो OD professionals हैं, if they start getting due respect or due work in those companies, तो हमारे कंट्री में जो फेलियर ऑफ MSMEs है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और सक्सेस ऑफ MSMEs का तो बहुत ही एडवांटेज है, उन ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। एंड विल हाँ बी, सर, हाँ, लीडिंग, मतलब धीरे धीरे वी कैन बी द लीडिंग प्रोड्यूसर इन एन नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो थोड़ा ग्रो करता है तो बहुत सारे में किसी चीज किसी किसी को बहुत ज्यादा ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। So this is what happened if you include OD in the system, or this will what happen when you don't include OD in the system. So the currently you have seen, तुमने देखा होगा, अच्छा ये भी तुमने सुना होगा, ये डेटा बहुत लोग बोलता है कि 85% स्टार्टअप, 95% स्टार्टअप तो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, और उसमें से भी जो चलते हैं उसमें से भी 60% स्टार्टअप जो है इवोल्यूशन के फेज को नहीं पार कर पाते हैं। So the main reason, and one of the main reason is like they could not inculcate or inherited the OD practices in them. ओके सर। ठीक है, तुम देखे होगे बहुत सारी कंपनी जो जिनको फंड मिलता है और बहुत जल्दी जल्दी पहले ग्रो करने की कोशिश करती है, और ऑल ऑफ सडन वो बैंकरप्ट होने लगते हैं, या फिर दे स्टॉप देयर फंक्शनिंग, है ना। हाँ सर। एक आस्क मी होगा, तो तुम अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, so it's not that ki they were not getting good employees, very good ये market and everything. All of a sudden you'll realize ki things goes to the OD practice only. So ओके, you need to connect your importance or your OD subject importance in that way, है ना। ठीक है सर। सर और ये जो पेटीएम का भी ये सुना होगा, जैसे ओपीआई मिल रहा है इनको कि वो लोग सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स, तो उसको किस पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं हम लोग, लाइक अगर OPI मिल रहा है मतलब मैं समझा नहीं। जैसे वो अपने शेयर शायद बेच रहे हैं ना कुछ, तो देखो ये वो तो क्या है ना कि जैसे शेयर्स बेचना, वो कई बार कंपनी के फाइनेंशियल वो होते हैं और कंटिजेंसी का है, वो है, उसमें OD का रोल नहीं है। वैसे कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें अप डाउन हुई हैं, है ना, उसमें हर चीज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ OD, है ना। बट ओके। ये है, बता रहा हूँ कि ओवर अगर अभी के टाइम में इफ दे यूज OD इन अ गुड वे, तो हो सकता है इस प्रॉब्लम से दे कैन, जैसे दिस कुड बी वन ऑफ द टूल, है ना, आउट ऑफ एवरीथिंग which helps companies to regrow, हाँ ओके सर। है ना। और ऐसा नहीं कि पेटीएम OD अकेला ही तुम्हारा हर चीज है कंपनी के लिए, है ना। पेटीएम अब आईपीओ ला रहा है। हाँ वही पेटीएम था, आईपीओ ला रहा वो है। तो आईपीओ, वो वैसे सॉरी, हाँ। बेच नहीं रहा है, आईपीओ ला रहा है। ATM के साथ तो बहुत फायदा ही है आजकल, मतलब इट इज हाँ स्टिल ग्रोइंग कंपनी। IPO लाके वो समथिंग लाइक 20,000 करोड़ रुपीज को वो कर रहे थे, या और ज्यादा ही, मतलब इससे तो ज्यादा तो उनकी वैल्यू ही। एनीवे, तो कोई और क्वेश्चन किसी के पास फॉर इंटरव्यू और एनी टाइप ऑफ। सर। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे कि मैं अपने फैमिली बिजनेस में हूँ, जो कि सर एक टाइप का एसएमई है। एसएमई है तो सर इस वजह से सर मेरे को ये ओडी के कोर्स में जाने का सोचा कि ताकि सर मैं इसमें इसकी प्रैक्टिसेस अपने बिजनेस में ला सकूं और बिजनेस को आगे ग्रो कर सकूं। तो सर कहते हैं ये चीज़ सर वहाँ पे सही है ना सर, ये मतलब आप ज़्यादा। बिल्कुल बोल सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं कि तुम ये बोलो कि हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं। यू कैन से इफ आई बी अ प्रोफेशनल आई कैन ऑल्सो हेल्प इन माई SME और माई फैमिली ये वेंचर, ठीक है। मतलब आप OD पढ़ के डायरेक्टली यू कैन गो इनटू योर फैमिली वेंचर और स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट। ये जरूरी नहीं है, आप हो सकता है कि आप OD करके यू बिकम अ प्रोफेशनल एंड पैरेलली यू आर आल्सो हेल्पिंग इन दैट, ये भी कह सकते हो, है कि नहीं। सो OD से आपको प्रोफेशनल बनना है, इस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने कभी नैनो वर्ड सुना है, नैनो टेक्नोलॉजी। यस सर। यस सर। हाँ, तो नैनो टेक्नोलॉजी से कि नैनो के की टेक्नोलॉजी या पूरे एक नई स्ट्रीम ऐसे बन गई कि पहले जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई इस टाइप का क्रिस्टल है, ऐसे किसी भी तरह का क्रिस्टल बना दो। क्रिस्टल क्या होता है तुम्हें पता है ना। यस सर। जो एटम्स और की अरेंजमेंट जो होती है वो ऐसा नहीं, मॉलिक्यूल वाइज नहीं होता है ना। जो मॉलिक्यूल या एटम की अरेंजमेंट ऐसे होती है जो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में होता है ना, उसी स्ट्रक्चर में वो टूटते भी है अगर तोड़ा जाता है। तो व्हेन व्हेन क्रिस्टल ऑफ मतलब डायमंड है या ग्रेफाइट है, सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है।
तो जब हम इसको छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, एंड व्हेन मेक अ क्रिस्टल ऑफ लाइक 2000 एटम्स, ना बहुत छोटा सा। तो जो इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है ना, क्रिस्टल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज बहुत इंटाइसिंग होती है कई बार, बड़ी जैसे हीरा का देखो, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन होता है, बट दोनों में कितना फर्क है ना, एक की कोई वैल्यू नहीं है और एक की कितनी वैल्यू है, जस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट गेट्स बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड सी द ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड कैन नॉट। तो कई सारी चीजें होती हैं विच इज वेरी मतलब interesting to know about the crystals and their property. But when you make a very small crystal of very few atoms or few molecules, इसके ना प्रॉपर्टीज जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं उससे बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को आजकल के साइंटिस्ट जो है, ये पूरी नई डिसिप्लिन स्टेब्लिश हुई नैनो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो स्टार्ट किए कि भाई वो चेंज जो प्रॉपर्टीज है उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब नए नए यूज हम लोग निकाल रहे हैं मेडिसिन में, फिल्ट्रेशन में, इन्वायरमेंट में, हम नैनो टेक्नोलॉजी को वी आर यूजिंग, अलग अलग क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं कि उसके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आए हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एसएमईज और एमएसएमई, तो उसमें हम यही बोलना चाह रहे थे कि जो सबसे बढ़िया पॉइंट तुम क्या बोल सकते हो यहाँ पे, एंड व्हाट यू कैन से एंड व्हाट यू कैन थिंक, नॉट इवन बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं तो चाहता हूँ ऐसा सोचो। So when we talk about a big organization, someone मतलब ऐसा कोई 2000 हजार लोगों की कंपनी है ना, जहाँ पे सारे फंक्शनल आपको सारे फंक्शंस डिफाइन है, लोग डिफाइन है, दे आर वेल स्ट्रक्चर्ड, ब्यूरोक्रेसी या मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिस भी तरह का डिफाइन है पहले से, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्टडी करते हैं, बिहेवियरल स्किल्स, देयर वर्किंग स्किल्स, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। And practicing OD is still easy here because we have done that research, that kind of research. तो फॉरवर्ड बिजनेस स्कूल है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं ज्यादातर, मतलब इनका इंसेप्शन ही इसीलिए हुआ था। तो बहुत सारे रिसर्च हमने किए हैं ऐसी कंपनीज पे कि हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर और कैसे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनलिटी होती है। So when we go for the smaller organization, when we talk about 30 people companies, 50 people companies, so all these things that we have studied here is not going to work directly because the property this big organization process और the same property मतलब same industry का, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की कंपनी है और किसी 2000 लोगों की कंपनी है, और सेम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की कंपनी है 40 लोगों की कंपनी है। when you start comparing these two organizations, आपको इनके प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। now if the property has been changed, so OD practices will also be changed because the OD practices we are learning here for them will not be directly applicable to this. So अब यहाँ पॉइंट आता है क्या कि nobody has done the research for this kind of ये organization because again जैसे मैंने बोला कि बड़े क्रिस्टल से छोटे क्रिस्टल में फर्क हो जाता है, एंड ऑल द अदर क्रिस्टल्स विल हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज व्हेन दे बिकम स्मॉलर, और छोटा नैनो लेवल पे क्रिस्टल बने। तो सिमिलरली एमएसएमई और एमएसएमई के ऊपर एक तो रिसर्च कम है ना, उनके ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस पे। तो हियर यू गेट अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी to establish or contextualize these OD practices for the SME field, and then since you will be pioneer in that because you will be the one, not only one, you will be the few people who have started thinking in this way, और आप इस पे, और because क्यों इजी है आपके लिए काम करना ये, because in India you can have multiple practice ground for that, है ना, और study ground for that। तो आप रिसर्च प्रैक्टिस करके यू कैन बी द एक्सपर्ट हियर, और यू कैन बी द पायनियर, और यू कैन बी द रियल टाइम इनोवेटर इन ओडी प्रैक्टिसेस फॉर द एमएसएमई। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है अमित की। यस हाँ, तो मतलब वहां से आपको ये मिलता है कि वी कैन कन्वर्ट और वी कैन थिंक, है ना, डिवाइजिंग ओडी ओडी प्रैक्टिसेस या कंटेक्चुअलाइजिंग ओडी प्रैक्टिसेस फॉर द कंपनीज which are very small, है ना, because all those OD techniques or OD interventions that we study in book, है ना, तुम किताब पढ़ के देखो, that is mainly for or that has been developed for the bigger organization who are already structured, है ना, उनके लिए डेवलप किया गया, ठीक है। ओके और बताओ, और किसी के पास कुछ है?